स्टैक। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था कि आपके पास जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, generally expressions that we write are of this form: 2 plus 3 into 4. These kind of expression in which the operator is present in between the operands is called infix notation. ठीक है, तो ये हमारा infix notation कहलाता है। ठीक है, if the operator is present after the operands on which it has to operate, then it is called postfix notation. For example, in this case, first 3 and 4 will be multiplied and then 2 will be added. Okay, so this expression will be converted into postfix like this and then plus. So this is called postfix operation, postfix notation. Okay. Similarly, this expression can also be converted into prefix. In case of prefix, it will be presented like this: plus star, sorry, plus 2 star 3 4। ठीक है, ये हमारे पास प्रीफिक्स में आएगा। ठीक है, in case of infix, the operation order has to be specified, otherwise you cannot calculate it correctly. For example, if you calculate this expression, then what will be the result, or what could be the result? बताइए, if we evaluate the first expression, then 40 या 14 क्या बोल रहे हैं, 14 बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई आंसर? इट मे बी, अगर आप इसको इस तरह से एवेलुएट करते हैं किसी छोटे क्लास के बच्चे को, तो इन दोस्त को ये चीज़ नहीं मालूम है कि इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सो वन पर्सन में ऐड 2 and 3 first and then multiply by 4, then it will be 20. Is it possible? If you add these numbers first, because यही लिखा हुआ है इसमें, expression is written like this: 2 plus 3. So if you add 2 plus 3, then it will be 5, and if you multiply by 4, then it will be 20. So this expression is ambiguous. It may result in different values because the operation order is dependent on the calculation is dependent on the order of calculation in which the calculation has been performed. But in case of postfix and prefix, this is not the problem. In case of postfix, there are operators and operands, and these are the operands. First operand is 2. Okay. When we get an operand, we put it on the stack. So if you get 2, you put on the stack. You got 3, you put on the stack. You got 4, you put on the stack. You got a star. Then you will take out 2 when you got a operator. Then you take out 2 operands from the stack. So these are 4 and 3. Okay, so it will be evaluated as 12. So 4 will be removed and 3 will be removed. So now the stack will be like this. Only 2 is remaining. Now the result will be stored back onto the stack. So it will contain 12.
now expression is still remaining, then you will get a plus. So when you get a plus, then again you pop up the operands from the stack and you apply the operator. So you got 12 plus 2, so the result will be 14. Similarly, in case of prefix, when operators are इसमें हम ये करेंगे कि प्रीफिक्स को एवेलुएट करते वक्त कि हमें जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं उनको हमने स्टैक पे डाल दिया, ठीक है, प्लस फिर आपके पास आया 2, तो उसको आपने दूसरे स्टैक पर रख लिया, क्योंकि अभी आपके पास दूसरा ऑपरेटर नहीं आया है, ठीक है। ये छोड़िए उसको, भी हम जो है पोस्ट फिक्स की बात नहीं, प्रीफिक्स की नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्रीफिक्स नोटेशन एंड you will be using prefix. एक इसमें आपकी एप्लीकेशन ये भी, यू कैन कन्वर्ट योर इनफिक्स नोटेशन इनटू प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। सो विल डिस्कस, बल्कि चलिए मैं आपको एक उसका भी एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। सो इसका इवेल्यूशन आप लोग खुद, इसका इम्प्लीमेंटेशन आप लोग खुद करेंगे, दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट एन इनफिक्स नोटेशन इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। इवेल्यूशन का मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इवेल्यूशन का तो आपको मालूम हो गया कि हम स्टैक को कैसे यूज कर रहे हैं। दिस इज अवर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ओके। सो यू विल रीड द इनपुट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। आप अपना इनपुट जो है वो इस फॉर्मेट में देंगे। सो दिस विल बी इनपुटेड लाइक अ स्ट्रिंग, ठीक है, 2 3 4, and we are considering single digit numbers, okay, so that there's no confusion that this is 2 or 23 or 4 or 234. So we are considering single digit numbers, okay. For the simplicity purpose, we are using single digit numbers in our expression, okay. So this is the expression containing 3 numbers and 2 operators, and it will be inputted like this. And when we are calculating or when we are evaluating the expression, when we get a number, we push it onto the stack. So when you read first character of the string, it is 2, you will put or you will push it onto the stack. Then you got 3, you will push onto stack, you will get 4, then you will push it onto stack. When you get star, then this is not the number, so you will take out 2 previously stored numbers, so these are 4 and 3, and you will apply the operator. So you will have some answer. So this is your answer, and since you have removed these numbers from the stack, so the stack is containing only 2. Now you have calculated this expression and the result is 12, and you will push back the result onto the stack. So now the expression is now the stack is containing 2 and 12. Again, when we get another operator plus, then we pop 2 numbers from the stack. So these are 12 and 2. So we have popped next 2 numbers, and the operator is applied onto the numbers. So you will get 14. Okay. So this is how we are getting the numbers. Similarly, we can convert the expression into postfix. ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को अगर आप कंसीडर करें 2 plus 3 star 4, ठीक है। Now I want to convert this expression into postfix notation, ठीक है। आप इसको postfix में convert करना चाह रहे हैं। तो जब convert करना होता है हमको, what can we do? We can execute like this. We are having a stack and a string. एक आपके पास string है, suppose we are calling it expression or exp, okay, and this is the string, original string, or you can say this is infix string. So you can say infix notation or in string or post string, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें, ठीक है।
हम इसको कह रहे हैं ये हमारा है str, ठीक है। str is containing 2 plus 3 star 4. Now we have to process the whole string, so we can process it like while str I not equals to null. जब तक ये null नहीं हो जाता है तब तक आपके string में characters मिलते रहेंगे. So we are looking for the operators and operands. So whenever there is a number, if इसमें आप नंबर्स की रेंज होती है वो भी यूज कर सकते हैं, एंड देयर इज अ फंक्शन इस डिजिट फंक्शन. एक आपके पास इस डिजिट के नाम से फंक्शन है जो डिजिट्स को चेक करता है, और आप नंबर भी लगा सकते हैं. हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इफ इस डिजिट, किस नंबर किस कैरेक्टर को चेक करना है, हमें इस ith कैरेक्टर को ही चेक करना है. इफ इट इज डिजिट, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा देन यू हैव टू पुश इट ऑन टू स्टैक. अब एक चीज और इसमें नोट करने वाली बात है कि आपके पास जो कैरेक्टर की फॉर्म में 0 है, दिस इज 0, ये आपका कैरेक्टर 0 है, ठीक है. अगर कैरेक्टर की फॉर्म में 0 तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 48 होती है, जिसको हम एस की वैल्यू कहते हैं. तो 0 की एस की वैल्यू कितनी है? कैरेक्टर और ये उसकी एस की वैल्यू. तो 0 की होती है 48, 1 की होती है 49, इस तरह से 1 बढ़ती जाती है. और सभी कैरेक्टर्स की होती है. अगर आप देखें इसमें तो कैपिटल ए की होती है 65, स्मॉल ए की होती है 97. So every character is having a corresponding ASCII value, that is the binary equivalent or binary representation of the character. यानी कैरेक्टर आपका 0 जो है वो 48 बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. So we are saying that its ASCII value is 14. So since we have read it in the form of a string, so all these are all characters. So we need to convert these characters into corresponding numbers. So we have to, if this is the digit, if this character is the digit, then we need to convert it into number. Okay, so I am having a temporary number. वेल एक ले ले रहा हूं मैं, ठीक है. एक इंटीजर है वैल्यू, ठीक है. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? वैल्यू इक्वल्स टू stri minus 48. Now this will be the numerical value of the character. तो आप उसकी str वैल्यू से 48 माइनस कर देंगे, you will get the value of the number. Then you have to push this value on to stack. तो इसको आपने स्टैक पे पुश कर दिया. अगर कैरेक्टर है, सॉरी अगर नंबर है, देन यू आर पुशिंग इट ऑन टू नंबर्स. सो इफ यू गेट 2 देन यू विल, चाहिए मैं आपको इवैल्यूएशन वाला बता रहा हूँ, ठीक है. मैं कन्वर्जन कह रहा था, लेकिन जो मैंने बनाया वो इवैल्यूएशन के हिसाब से बनाया, ठीक है. तो आप अभी इवैल्यूएशन का ही देख लिए. करना तो आपको ऐसे ही, यू आर हैविंग द इनपुट स्ट्रिंग एंड यू हैव टू कन्वर्ट. अब हम इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन, ठीक है. तो ये आपका एक्सप्रेशन हम इसे इवेलुएट कर रहे हैं. इवेलुएशन वाले ही उससे बता दिया मैंने आपको. कन्वर्जन का मैं आपको भी आइडिया दे दूंगा, ठीक है. सो वी आर पुशिंग द वैल्यूज. तो आपने यहाँ पर इस वैल्यू को पुश किया, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, जब आप कन्वर्जन, सॉरी चलिए, तो फिर हमें उसको पुश नहीं करना है. सॉरी, मैं कन्वर्जन का ही बता देता हूँ पहले, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन ये लिया है. बताइए, पहले कन्वर्जन का बता दूं या वैल्यूएशन का बता दूं?
कन्वर्जन के ऊपर ही चल रहे थे, चलिए छोड़िए, ठीक है। कन्वर्जन में फिर हम इसको पुश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमको नंबर मिल गया, तो फिर इसको अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड दिस। मैंने आपको बताया था एक हमने वेरिएबल ले रखा है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इनिशियली सपोज जे है एक नंबर, जे को हमने 0 पे इनिशियलाइज कर लिया, और जो एक्सप्रेशन हमने लिया था EXP जे में हमने STR को जो है वो स्टोर कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन वाली स्ट्रिंग थी उसमें हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और यहां से भेटाइए उसको, ठीक है। एंड दिस वाज फॉर द डिजिट, अगर डिजिट आता है तब आपको ये करना है। एंड और हमारे पास डिजिट और एक्सप्रेशन यानी नंबर्स के अलावा और ऑपरेटर्स के अलावा कुछ और नहीं आएगा। सो एल्स इफ, यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटर्स ले रहे हैं, एल्स इफ str I इक्वल्स टू प्लस और str I इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। इस तरह हम इसमें सारे एक्सप्रेशंस ले लेंगे, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, अब बल्कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख दे रहा हूँ, मैंने 2 ही लिए। आप यहाँ पर माइनस और डिवीजन का ऑपरेटर भी जिसमें इंक्लूड कर लेंगे। अगर ये आता है तब आपको क्या करना है, अगर प्लस आता है या स्टार आता है, देन यू हैव टू पुश इट ऑन टू स्टैक। लेकिन पुश करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है कौन सा ऑपरेटर किसके ऊपर पुश कर सकते हैं, ठीक है। सिंस वी आर कन्वर्टिंग अवर इनफिक्स नोटेशन, और इनफिक्स के साथ जो है ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है, एंड पोस्ट फिक्स के साथ ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में हमेशा इवैल्यूएट करते हैं। सो सिंस वी वांट टू implement it, we want to convert, so we are enforcing the order of evaluation, ठीक है। so if a plus or star comes, plus or minus comes, ठीक है, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं उसे मेंशन कर देता हूँ, इसको हम पुश करेंगे, लेकिन पुश करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी ऑपरेटर है, ठीक है, जो प्रीवियसली स्टोर्ड नंबर है, प्रीवियसली स्टोर्ड ऑपरेटर है स्टैक के ऊपर, उससे कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर उसके ऊपर स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस हमें फिलहाल यही चेक करना है। तो आपके पास अगर प्लस आया है यहाँ पर, तो आप उसको चेक करेंगे पुश करने से पहले। प्रेसिडेंस के लिए आपको एक वो बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, या खुद ही आप उसको हार्ड कोड कर सकते हैं। इफ str I equals to प्लस एंड, ये हमने एक आपको फंक्शन बताया था, उसमें पॉप है और एक पुश है। पॉप करते हैं तो आपका आइटम जो है स्टैक पे से हट जाता है, पुश करते हैं तो स्टैक पे स्टोर हो जाता है। मैंने आप लोगों को एक फंक्शन और बताया था, जिसकी मैंने कहा था अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। एक फंक्शन था पीक। पीक का मतलब है कि हम जो काम पॉप में कर रहे हैं वही काम है, बट वी आर नॉट पॉपिंग द एलिमेंट आउट ऑफ द स्टैक, वी आर जस्ट चेकिंग द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट, ओके। सो वी नीड टू पीक द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। हमको सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम उसके लिए एक चाहे तो फंक्शन बना सकते हैं पीक के नाम से, जैसे पुश और पॉप आपने इम्प्लीमेंट किए। पीक में आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू रिटर्न द टॉप एलिमेंट्स।
एंड डू नॉट रिमूव, आपका जो टॉप ऑफ स्टैक है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको या तो पीक के थ्रू कर सकते हैं या हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। अब किसने ज्वाइन किया, ठीक है, ये हमने स्टैक में क्या लिया था, रिप्रेजेंटेशन आइटम, ठीक है। हमारा एक सी में है तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, एंड आइटम टॉप नॉट इक्वल्स टू स्टार, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्टार को ले रहे हैं और प्लस को ले रहे हैं, तो हमने इसी को स्पेशली मेंशन कर दिया कि ऐसा ना हो कि हमारा स्टार करंट कैरेक्टर है और स्टैक में ऑलरेडी स्टार उस पे स्टैक पर स्टोर हो, यानी आप स्टार के ऊपर प्लस स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टैक के ऊपर अभी कुछ है नहीं, बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी, वी आर स्टार्टिंग। सो इफ दिस इज द कंडीशन, ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अभी हम एल्स वाले ब्लॉक में पहुंच गए हैं, ठीक है, ये इफ का था, एल्स में आ गए, तो हम एल्स में इस चीज को कर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है जैसा वहां पर मैंने आपको बताया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यू विल सिंपली पुश str, जो भी आपके पास कैरेक्टर आया था उसको आपने पुश कर दिया, ठीक है। और अगर ये केस था कि आपके पास प्लस आया और ऑलरेडी उस पर वो हो, अच्छा सॉरी, पुश तो यहाँ पर ही करूंगा मैं, नॉट इक्वल टू लगाया ना मैंने, तो यहाँ पर करूंगा पुश str i। अगर ये प्लस है और वहां पर स्टार नहीं है तो हमने इसको पुश कर दिया आइटम को। और अगर स्टार मौजूद है वहां पर, तो पुश करने से पहले हमें, it is not allowed to push a lower precedence element on top of higher precedence element, so we need to remove the uh, already existing element, so we will remove। तो आप इसको जो हमारा एक्सप्रेशन चल रहा है, एक्सप्रेशन कहाँ पर हमने स्टोर किया था, एक्सप्रेशन यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर दें थोड़ा सा, जब भी इसे स्टोर करेंगे तो उसे प्लस प्लस लगा के करेंगे ताकि हमारी जे की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए। हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी जे प्लस प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अब पॉप कर सकते हैं, हम पहले उसको पॉप करेंगे तो जो एलिमेंट पॉप होकर आएगा वो यहाँ पर इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे जो करंट एलिमेंट था str i उसको पुश कर देंगे, ठीक है। एंड कंटिन्यू, हमारा ये str वाला वाइल लूप चल रहा है, इफ एल्स इफ, ये इनर इफ है, एल्स इफ बंद होगा, यहाँ पर ये एल्स बंद हुआ था, ये एल्स इफ बंद होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इफ के बाद आ गए तो यहाँ पर हम आई प्लस प्लस कर देंगे, उसके बाद हमारा ये वाइल लूप जो है वो बंद हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब देखिए, अब प्रोग्राम हमारा बन गया है, पुश और पॉप और पीक ये जो है वो आप खुद से इम्प्लीमेंट पिछली बार कर ही चुके हैं, उसी प्रोग्राम में आप इस चीज को ऐड कर लेंगे तो दोनों जो है वो सेम प्रोग्राम में रहेंगे, यानी आपका स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन भी उसी में होगा, उसी में हम इवेल्युएशन वाला पार्ट जो है वो ऐड, एक्सप्रेशन कन्वर्जन वाला भी इवेल्युएट कन्वर्जन वाला पार्ट भी उसी में ऐड कर देंगे। सो आई हैव एडेड द कन्वर्जन पार्ट देयर, ओके। सो हाउ आई एम डूइंग, मैं इस एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने सब मेन प्रोग्राम नहीं लिखा, आप ये समझ लीजिए कि आपका स्टैक वाला जो प्रोग्राम बना हुआ है उसके आगे ही है, ठीक है। उसके आगे आपने एक स्ट्रिंग स्कैन करवाई, यूजर को मैसेज दें कि एंटर दी इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो यूजर जो है वो कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन इस तरह का इनपुट कर देगा, ठीक है। देन वी हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम, इसमें हमने जे को 0 लिया है, आई को भी 0 ही लेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है।
चाहे तो कर दिया i इक्वल्स टू 0। उसके बाद 0 का मतलब हम फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर चेकिंग विद द हेल्प ऑफ इस डिजिट, इफ इट इज अ डिजिट देन वी आर एडिंग ऑल द डिजिट्स इनटू द एक्सप्रेशन स्ट्रिंग। जो हमारी एक्सप्रेशन स्ट्रिंग उसमें हम ऐड करते आ रहे हैं सारे के सारे डिजिट्स को, तो जो भी डिजिट आएगा वो ऐड हो जाएगा। सो फर्स्ट यू विल गेट अ 2, दिस 2 विल बी एडेड हियर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आई प्लस प्लस करेंगे, अगले करेक्टर पहुंच जाएंगे। अगला करेक्टर क्या मिलेगा आपको? प्लस मिलेगा। विल कम हियर, इफ दिस इज प्लस एंड प्रीवियसली स्टोर्ड आइटम, सॉरी मैंने यहाँ पर, अच्छा ठीक है। अगर आप प्लस, और अभी हमने सिर्फ दो ही एक्सप्रेशन, दो ही वो लिए थे ऑपरेटर्स, प्लस है या स्टार है, तो आप इस एल्स इफ के अंदर जाएंगे और उसके अंदर हमने चेक किया कि हमारा करंट एलिमेंट जो है वो स्टार प्लस है, और आइटम जो स्टैक के टॉप पर है वो स्टार नहीं है। नॉट इक्वल टू लगाया था मैंने, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू स्टार। सो दिस इज द केस, क्योंकि अभी हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी चीज वहां पर नहीं है। So we will push the current element, that is plus। तो प्लस हमारा स्टैक पे चला जाएगा, चला गया, ठीक है। अगेन आपका आई जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड विल मूव ऑन टू 3। जैसे ही आपका 3 आएगा आप यहाँ जाएंगे, ये डिजिट है तो एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में आपके पास यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। प्लस आया था वो स्टैक पे चला गया, 2 आया था एक्सप्रेशन में आया, प्लस आया स्टैक पे गया, 3 आया एक्सप्रेशन में आया। अब आप अगला क्या मिलेगा? यू विल गेट अ स्टार, ठीक है। अब आपको स्टार मिलेगा, तो आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। प्लस और स्टार में से कोई भी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अब आपके पास करंट एलिमेंट क्या है? वो प्लस है, और प्लस नहीं स्टार है। सो दिस इफ कंडीशन इज फॉल्स यू विल गो टू, अच्छा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, एक और बनेगा। चलिए इसको हम एल्स इफ में डाल देते हैं। एल्स इफ, यहाँ पर जो हमने पीछे एक्सप्रेशन लिखा हुआ था उसी का जस्ट उल्टा समझ ली। str I equals to star and item top equals to प्लस। अगर ऐसा था तो आपको पहले उसे पॉप करना पड़ेगा, तब आप करेंगे। उसके बाद एक एल्स यहाँ पर लगा दे रहा हूं मैं, इसको मिटाता हूं, यहाँ एल्स लगा दे रहा हूँ। एल्स इसको आप जो है वो सिंपली स्टैक में पुश कर देंगे। अभी आप जो है सिर्फ पुश कर रहे हैं, एल्स पुश str I, तो इसको आपने पुश कर दिया। तो जब आपके पास स्टार आएगा तो ये कंडीशन भी नहीं है कि ऑलरेडी आपके करंट स्टार है और स्टैक के टॉप पे प्लस है। अच्छा ये एल्स कंडीशन तो तो ये आपका पुश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो स्टार जो है वो प्लस के ऊपर पुश हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने इसको पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप आगे आगे बढ़ेंगे, आपको 4 मिलेगा, 4 विल बी एडेड हियर। नाउ योर स्ट्रिंग इज एम्प्टी। जो स्ट्रिंग थी वो आपकी एम्प्टी हो गई। अगर ऐसा हो जाता है इफ स्ट्रिंग इज एम्प्टी, ठीक है, तो आपके पास यहाँ तक हो गया है, हम क्या करेंगे, आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, सो यू विल कम आउट फ्रॉम दिस लूप। इसके बाद हम ये करेंगे, while top is greater than equals to 0, जब तक टॉप हमारा 0 नहीं हो जाता है तब तक हम क्या कर रहे हैं, वी आर popping all the numbers from the stack and adding to the expression। तो आपके जब तक भी उसमें जितने भी बचे हुए हैं
सभी उसमें पॉप होते जाएंगे और आपके इसमें एक्सप्रेशन में ऐड होते जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। आपके पास 2 आया, आपने एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया। देख लीजिए इसको एक बार फिर से, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ। आपके पास ये स्ट्रिंग थी, सो यू गॉट अ 2, सो यू एडेड द 2 इनटू एक्सप्रेशन। फिर आपको प्लस मिला तो आपने प्लस को स्टैक पे स्टोर कर दिया। फिर आपको 3 मिला तो आपने इसमें एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया। फिर आपको स्टार मिला तो आपने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। फिर आपको 4 मिला, अपने एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नल कैरेक्टर मिल जाएगा, जो हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। नल कैरेक्टर जैसे मिलेगा यू विल कम आउट ऑफ द लूप, आप इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आपके पास एक्सप्रेशन में 2 3 4, स्टैक के ऊपर है प्लस और स्टार, एंड यू आर आउट ऑफ द लूप। आप इस लूप से बाहर आ गए। अब आपको क्या करना है, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं स्टैक पर, उन सबको खाली करके उसमें ऐड कर देना है अपने एक्सप्रेशन में। सो वी आर popping all the elements out of the stack and adding them into the expression. So it was already 2 3 4, 2 3 4 आ चुका था आपके पास। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैक को एम्प्टी कर रहे हैं। तो आपका स्टैक एम्प्टी होगा, सबसे पहले क्या निकलेगा इसमें से, स्टार निकलेगा, इट विल कम हियर। फिर उसमें से प्लस निकलेगा, इट विल कम हियर, देन स्टैक इज एम्प्टी। सो योर एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सो दिस इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप अगर इसको चेंज करें, if the expression was like 2 into 3 plus 4, अगर आपके पास एक्सप्रेशन ये होता, in this case what will happen, बताइए आप लोग, कैसे हम इसको evaluate करेंगे। अगर आपके पास 2 plus 3 2 star 3 plus 4 होगा, तो आप सबसे पहले इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे आपको एक्सप्रेशन में क्या मिलेगा, यू विल गेट 2। तो 2 आपका यहाँ ऐड हो जाएगा और स्टार आएगा, ऑलरेडी स्टैक एम्प्टी है तो स्टार आपका स्टैक पे चला जाएगा, ठीक है। स्टार आया, स्टैक पे चला गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 into 3 plus 4, ठीक है। 2 आया तो आपका एक्सप्रेशन में गया, स्टार आया स्टैक पे गया। उसके बाद 3 आया तो एक्सप्रेशन में आया। उसके बाद क्या आया, यू विल गेट अ प्लस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हाई प्रेसिडेंस का नंबर ऑपरेटर जो है वो स्टैक पर है, तो वी कैन नॉट पुश द करंट ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। उस केस में हमको इसे एम्प्टी करना पड़ता है, ठीक है। सो विल एम्प्टी इट, यानी आपका केस ये हो गया कि एसटीआर आपका जो है वो ये वाला पीछे वाला केस जो था, एसटीआर में स्टार है, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी उसमें करंट जो ऑपरेटर है वो आपका प्लस है और प्रीवियसली स्टोर्ड जो है वो स्टार है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू एम्प्टी द स्टैक। तो आप स्टैक को एम्प्टी करेंगे तो आपका स्टार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको 4 मिलेगा, 4 आप यहाँ पर लगा देंगे और स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। स्टैक से आपने इसको यहाँ से हटा दिया, आपने पॉप किया था यहाँ से हट गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास 3 के बाद जो है वो प्लस आएगा, तो प्लस को आप यहाँ पर पुश करेंगे। उसके बाद 4 आएगा, 4 स्ट्रिंग इसमें आ जाएगा, एक्सप्रेशन में आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे, देयर इज नो फर्दर कैरेक्टर इन दी स्ट्रिंग, सो विल पॉप ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, ये यहाँ आ जाएगा। सो द एक्सप्रेशन विल बी 2 3 स्टार 4 एंड प्लस, ठीक है। तो आप अगर अब देखें इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या होगा, 2 3 ये कन्वर्जन हो गया, ठीक है। 2 स्टार 3 प्लस 4 का कन्वर्जन ये होना चाहिए। जब आप इसको इवेलुएट करें, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, सो 2 3 स्टार, तो आपके पास 2 ऑपरेटर हो गए, 2 ऑपरेंड्स होकर एक ऑपरेटर हो गए। जैसे ही आपको 2 ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर मिल जाता है, आप उसको इवेलुएट कर देते हैं, ठीक है। सो यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपके पास इवेलुएट करने पर इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 प्लस देन यू विल गेट 10। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अगर आप इस इनफिक्स को भी करके देखें, सबसे पहले आप 2 into 3 करेंगे, इट विल बी 6 प्लस 4 इट विल बी 10। सो दिस इज 10। लेकिन इसमें जो है वो आपका इवैल्यूएशन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि अब आप इसमें किस चीज को पहले करेंगे। इसमें आपका स्टार जो है वो हाई प्रेसिडेंस का है, तो इसको आप पहले करेंगे, ठीक है।
नाउ कम टू इवेल्युएशन पार्ट। ये मैंने कन्वर्जन वाला बता दिया। अगर आप इवेल्युएशन करते हैं पोस्ट फिक्स का, ठीक है, तो पोस्ट फिक्स का और इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो स्टैक बना रहे हैं वो किस चीज के लिए बना रहे हैं। अगर आपने कैरेक्टर स्टैक बनाया, यू कैन स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज। आपने अगर इंटीरियर स्टैक बनाया तो आप उसमें इंटीरियर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम इवेल्युएशन के लिए यूज कर रहे हैं उसके इसमें हम ये इंटीरियर स्टैक बनाएंगे, ठीक है। अगर हम इसे इवेलुएट करना चाह रहे हैं तो इवेल्युएशन में आसान है, ठीक है। आप इनपुट में क्या देंगे, विल गिव द एक्सप्रेशन जैसे मैंने अभी दिखाया था, इट मे बी लाइक 2 3 4 स्टार प्लस, ठीक है। ये आपने एक्सप्रेशन इसे एज इनपुट दिया। इसमें आपके पास जब भी कोई नंबर आता है इसको आप स्टैक में डालेंगे। अब आप इवेल्युएशन कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कोई नंबर आता है वो आप स्टैक पे डालेंगे। 2 आया स्टैक पे डाला, 3 आया स्टैक पे डाला, 4 आया स्टैक पे डाला। और जैसे कोई ऑपरेटर आता है, जैसे ही ऑपरेटर आएगा आप ऑपरेटर को देखेंगे और इन दोनों को पॉप करेंगे और अप्लाई करेंगे ऑपरेटर को। 3 इंटू गया आपने, आपके पास हो गया 12। और इन दोनों को यहाँ से हटाया, पॉप किया, ठीक है। सो योर स्टैक विल बी लाइक दिस 2। और उसके बाद आपने नया रिजल्ट जो है 12 पुश कर दिया। फिर आपके पास आएगा प्लस, तो अगेन आप इन दोनों को यहाँ से पॉप करेंगे, रिमूव किया आपने, आपके पास आ गया 12 और प्लस 2। इसको आपने वैल्यूएट किया, आपके पास हो गया 14, ठीक है। आप इस 14 को जो है स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका एक्सप्रेशन एंड हो गया। सो वट एवर इज द वैल्यू स्टोर्ड ऑन द स्टैक दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये आपके एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें इवेल्युएशन वाला काम। चलिए, अब मैंने आपको कन्वर्जन का बता दिया है, आप इवेल्युएशन का खुद से लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो कैसा होगा, ठीक है। यहाँ आपने लगा लिया हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर आपने अपना वो डिफाइन किया था स्टैक में, डिफाइन मैक्स 10। फिर आपने स्टैक डिफाइन किया था स्ट्रक्ट स्टैक, यहाँ दिया था आपने इंट आइटम मैक्स, ठीक है। और एक आपने लिया था इंटीरियर टॉप। और यहाँ पे एक आपने लिया था st के नाम से वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया था पुश और पॉप का। विल राइट void push int x। ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, जैसा लिखा हुआ था एज इट इज रहेगा। फिर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे इंट पॉप, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आपने पॉप के लिए जो ऑपरेशन लिखे थे वही आपका सेम प्रोग्राम है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा पॉप वाला। अगर आप इसे पीक को यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, वैसे यूज करना ज्यादा आसान है। इंटीरियर पीक, पीक का काम क्या है, जस्ट टू check the top element without popping out। ये बिना पॉप किए हम इसको चेक करेंगे टॉप एलिमेंट को, तो उसके लिए हमने फंक्शन का नाम रखा है पीक, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिटर्न द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी होगा तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इफ, अच्छा ये हमारा st डॉट टॉप नॉट इक्वल्स टू
अगर उसका टॉप -1 नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो आप उसी को रिटर्न कर दिए, रिटर्न आइटम st.item, st.item और यहाँ पर st.top, इसको आपने रिटर्न कर दिया। एल्स अगर मान लीजिए स्टैक एम्प्टी था, तो आप क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न, यहाँ पे तो -999 जो पहले किया था वही यहाँ पे भी कर देंगे, -999, ये हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास एक एडिशनल पीक फंक्शन और हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए लिखना है, तो वो हमारा सारा काम मेन फंक्शन के अंदर ही होगा, उसको हम मेन के अंदर ही लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया इंट मेन, यहाँ पास स्टैक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे, st.top इक्वल्स टू -1, ये आपने स्टैक को इनिशियलाइज किया, स्टैक के टॉप को, सो दैट इट इज इनिशियली एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद आपने लिया एक, इसको मेरे ख्याल से ऊपर ही कर दें, यहाँ कर दे रहे हैं, मेन से पहले बेसिकली करना चाह रहा हूँ मैं, इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं st.top इक्वल्स टू -1, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, हमने उसको बाहर ही इनिशियलाइज कर दिया है, इंट मेन, यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर कैरेक्टर एक्सप्रेशन लेना है, ठीक है, ये आपका एरे हो जाएगा। सपोज ये आपने 10 का ले लिया, 10 कैरेक्टर तक का आप एक्सप्रेशन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। उसके अलावा आप क्या चाहिए, एक आपने इंट आई ले लिया है, i इक्वल्स टू 0, जे की भी जरूरत पड़ेगी, जे को भी ले लिए, आई और जे ले लिए। उसके अलावा हमें क्या चाहिए था, रिजल्ट आएगा एक हमारे पास, वो भी इंटीरियर में ही होगा। अभी हम जो है सिर्फ इंटीरियर ऑपरेशंस वाले रिजल्ट कंसीडर कर रहे हैं, और स्टैक भी हमारा इंटीरियर ही है, तो इसलिए कोई इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर स्टोर नहीं हो पाएंगे। एक आपने ले लिया रिजल्ट के लिए वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वी विल आस्क द यूजर टू इनपुट द एक्सप्रेशन, तो आप यहाँ पे printf एंटर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने यूजर से एंटर करने को कहा, यूजर कुछ भी एंटर करेगा उसको आप स्कैन कर लेंगे, इसको आप कर लेंगे गेट्स एक्सप्रेशन, तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो जो भी कुछ आपने रीड किया होगा वो आपका गेट्स फंक्शन से एक्सप्रेशन में रीड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे इवेल्युएशन पार्ट में जाना है, while एक्सप्रेशन आई नॉट इक्वल्स टू नल, यानी आपको पूरी स्ट्रिंग जो है वो प्रोसेस करनी 1 by 1। यहाँ पर आप जो है वो चेक करेंगे जो मैंने पहले लिखा था, इफ इसको हमें चेक करना है कि ये डिजिट है या नहीं, इफ इज डिजिट एक्सप्रेशन आई, एक्सप्रेशन आई अगर हमारा रिजल्ट ये जो है वो डिजिट है, अगर है
then what will we do? We will push this number. तो नंबर मैंने आपको बताया तो कैसे मिलेगा हमें, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें से हम 48 माइनस कर देंगे, एक्सप्रेशन I minus 48, because this is a character, and from this character 48 is subtracted, then it will be converted into corresponding number. तो हमने इसको नंबर में कन्वर्ट किया और इसको पुश कर दिया. अगर ये डिजिट है तो हमने पुश कर दिया, ठीक है. और अदरवाइज इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, ऑपरेटर, ठीक है. तो आप चाहें तो ऑपरेटर के लिए कुछ फंक्शन बना सकते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करें. इफ अगर फंक्शन नहीं बनाया तो आप फिर आपको यहीं पे चेक करना पड़ेगा. इफ एक्सप्रेशन I equals to plus और expression I equals to minus और expression I equals to स्टार. डिवीजन का हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि डिवीजन के लिए फिर हमको जो है वो अपना स्टैक का टाइप बदलना पड़ेगा. यू नीड टू टेक दी फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक. अभी हमने इंटीरियर स्टैक लिया था, तो अभी कीपिंग इट सिंपल हम इंटीरियर ऑपरेशन वाले ऑपरेटर्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन. अब अगर इनमें से कोई आता है तो आप क्या करेंगे, वी नीड टू पॉप दी वैल्यूज, ठीक है. हम यहाँ पर आईजे में नहीं करवा सकते हैं. ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, तो हम यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स और ले लेते हैं इंटीरियर में. हम करें ऑप 1 और एक ऑप 2. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल राइट ऑप 1 इक्वल्स टू पॉप ऑप 2 इक्वल्स टू पॉप, ठीक है. आपने इन दोनों को पॉप किया. उसके बाद जो भी आपके पास ऑपरेटर की वैल्यू है वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे. इनमें से कुछ भी था तो आपको पॉप करना है. उसके बाद आपको इसे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर था. बल्कि आप यहाँ पर स्विच लगा सकते हैं, स्विच एक्सप्रेशन आई. स्विच केस स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है. तो केस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, केस प्लस हो सकता है. तो अगर प्लस है उस केस में क्या होगा, विल कैलकुलेट द रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल्स टू ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2. ये हमारे पास रिजल्ट हो गया. और यहां से हमने कर दिया ब्रेक. केस माइनस, अगर माइनस है, माइनस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको किस तरह से ले रहे हैं. आपने लिया 2 3 माइनस, तो इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं, यू आर कंसीडरिंग 2 माइनस 3, ठीक है. 2 3 माइनस का मतलब ये है कि आप ऑपरेंड 1 को जो है वो बाद में आएगा, ऑपरेंड 2 आप अगर इसे स्टैक पे स्टोर करेंगे, जब आप इस स्टैक में करें, यानी आप ये कंसीडर करिए आपके पास 2 माइनस 3 था, ठीक है. अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं इट विल बी 2 3 माइनस, ठीक है. सो इट मीन्स स्टैक पे जो ऑपरेंड 2 है वो हमारा ऑपरेंड 1 कहलाएगा बेसिकली. तो हम इसको लें ऑपरेंड 2 कहेंगे और इसको ऑपरेंड 1 कहेंगे क्योंकि ऑपरेंड 1 हमारा नीचे चला गया है. ये ऑपरेंड 2 है और ये ऑपरेंड 1 है, ठीक है. सो मेक इट क्लियर. अब एडिशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन 1 आप पहले ऐड करें, ऑपरेशन 2 पहले ऐड करें, कुछ भी कर दें, लेकिन जब आप माइनस में जाएंगे तब इस पे फर्क पड़ता है. रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर आप कर देंगे OP1 माइनस ऑपरेंड 2 एंड ब्रेक केस स्टार
स्टार में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर सकते हैं आप। रिजल्ट इक्वल्स टू ऑपरेंड 1 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड 2 और ब्रेक। इसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो फिर आप मैसेज में दे दी कि हाँ ये आपका इनवैलिड ऑपरेटर। इसके अलावा हम किसी और ऑपरेटर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने स्विच केस में जाके इसे एवेलुएट कर दिया। जब ये एवेलुएट हो गया तो आपने पॉप कर चुके, तब आपको रिजल्ट को वापस पुश कर देना है। पुश रिजल्ट, रिजल्ट को आपने पुश कर दिया, ठीक है। मेन के अंदर थे आप, इफ आया, ये एक्सप्रेशन चल रहा है। इफ हो गया था, दूसरा हो गया स्विच केस पुश, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए लिखने में दिक्कत हो जाती है, वाइल चल रहा है, ठीक है। वाइल में आप यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस, और ये एंड ऑफ वाइल हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंड ऑफ वाइल, ठीक है। ये वाइल का एंड हो गया। वाइल का एंड हुआ है तो उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, आपको सिर्फ जैसे आपका एक्सप्रेशन खत्म होगा, वाइल खत्म हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन इवेलुएट हो गया। तो आप यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। printf दी रिजल्ट इज, पे आप इसे पॉप कर दी, जो भी कुछ स्टैक पर होगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसको आपने पॉप कर दिया और ये फिनिश हो गया। यहाँ से आप कर दिए रिटर्न 0, ये आपका एंड ऑफ मेन हो गया। दिस इज एंड ऑफ मेन, ये आपका एंड ऑफ मेन प्रोग्राम हो गया। सो इज इट क्लियर? मैंने आपको इसकी सारी थ्योरी बता दी है। आप लोग एक्सप्रेशन इवेल्युएशन का पहले कर लिए, आसान है, फिर कन्वर्जन वाला बाद में करिए। तो ये दोनों आपके लिए असाइनमेंट्स हो जाएंगे, आप इन दोनों को इम्प्लीमेंट करके सबमिट करेंगे। सिट क्लियर? पहले आप इवेल्युएशन वाले पे फोकस करिए, सिंपल इवेल्युएशन वाला। देखिए इसमें जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको स्टैक वाला प्रोग्राम एज इट इज यूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए बनाया हुआ भी है। ये एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, जो इस डिजिट फंक्शन है वो आपका इसमें सी टाइप डॉट एच लाइब्रेरी में रहता है, वो भी आपको इंक्लूड करनी होगी, सी टाइप डॉट एच, ठीक है। ये भी आप इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड, ओके। तो आप लोग इन्हें इम्प्लीमेंट करिए, अपने लेवल पर बनाई ली, मैं इनको क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद आप इन्हें सबमिट कर दिए, लेकिन अपने एंड पे आप इसे बना के रख लिए, ठीक है, ओके। और फिर नेक्स्ट रन पर हम इसको देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी